السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر خبرنامے میں میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رضا۔ میں ہوں نازیہ کمل۔ ناظرین، کھیل کا احوال میں سمیع اقبال آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا قاسم علی۔ سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز۔ I, Justice Yahya Afridi, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, and that in all circumstances I will do right to all manner of people according to law, without fear or favor, affection or ill will. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. جسٹس یحییٰ آفریدی نے چیف جسٹس آف پاکستان کی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ ایوان صدر اسلام آباد میں حلف برداری کی پروقار تقریب، صدر آصف علی زرداری نے حلف لیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی تقریب میں شرکت۔ چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی، وفاقی وزراء، ارکان پارلیمنٹ، مسلح افواج کے سربراہان بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ صوبائی گورنرز، وزرائے اعلیٰ، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز اور اعلیٰ حکام بھی تقریب میں موجود تھے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی پاکستان کے 30ویں چیف جسٹس ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو منصب سنبھالنے پر مبارکباد، نیک خواہشات کا اظہار۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کی قیادت میں عدلیہ انصاف کی فراہمی جاری رکھے گی۔ ان کا تجربہ، علم اور فہم قانون پر عمل درآمد کو مضبوط بنانے میں معاون ثابت ہوگا۔ وزیر اعظم مشرق وسطی پر ایک اور جنگ کے سائے، اسرائیل کا ایران پر حملہ، 20 سے زیادہ عسکری اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایران کی 2 فوجیوں کے جاں بحق ہونے کی تصدیق۔ انتہائی محدود پیمانے پر نقصان ہوا، دفاعی فضائی نظام کے ذریعے حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ صہیونی اقدامات کے خلاف دفاع کا حق رکھتے ہیں ایران کا رد عمل۔ پاکستان کی اسرائیلی حملے کی شدید مذمت۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار۔ اسرائیلی جارحیت سے علاقائی امن و استحکام کو خطرات لاحق ہیں۔ حملہ بین الاقوامی قوانین اور خود مختاری کے اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ مزید کشیدگی سے بچنے کے لیے تمام فریق تحمل سے کام لیں۔ پاکستان امن کے حصول کے لیے ایران اور دیگر ہمسایہ ملکوں کے ساتھ مل کر کام کرتا رہے گا۔ وزیر اعظم ایران اسرائیل کشیدگی میں اضافے پر عالمی سطح پر شدید تشویش۔ سعودی عرب کے اسرائیلی حملے کی مذمت۔ ایرانی خود مختاری کی خلاف ورزی قابل مذمت ہے۔ ترکی کا خطے میں اسرائیل کی دہشت گردی ختم کرنے کے لیے اقدامات پر زور۔ روس کا اشتعال انگیزی روکنے کا مطالبہ۔ کشیدگی میں کمی کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے۔ ایران تحمل کا مظاہرہ کرے۔ امریکہ اور برطانیہ کا رد عمل۔ اسرائیل کی دہشت گردی جاری، غزہ پر حملوں میں شدت، 77 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ شہداء کی مجموعی تعداد 42,924 ہو گئی، 1 لاکھ سے زیادہ زخمی۔ شمالی غزہ کا محاصرہ چوتھے ہفتے میں داخل، اسرائیل کے جنگی جرائم کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اقوام متحدہ کا رد عمل۔ صہیونی فوج کی لبنان کے مختلف علاقوں پر بھی بمباری، 41 افراد شہید، 133 زخمی۔ پاکستان کا جارحیت کے شکار غزہ اور لبنان کے نہتے شہریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر امدادی سامان کی 13ویں کھیپ روانہ۔ 100 ٹن سامان میں خیمے، کمبل اور دیگر ضروری اشیاء شامل۔ یہ سامان بذریعہ اردن غزہ پہنچایا جائے گا۔ مشیر قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک، فلسطینی سفیر اور NDMA حکام نے امدادی سامان روانہ کیا۔ پاکستان اب تک 1381 ٹن امدادی سامان بھجوا چکا ہے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر غزہ اور لبنان کے مظلوم مسلمانوں کے لیے امدادی فنڈ بھی قائم۔ 27 اکتوبر یوم سیاہ، دنیا بھر میں مقیم کشمیری کل یوم سیاہ منائیں گے۔ مختلف تقریبات کے انعقاد ہوگا۔ بھارتی تسلط کے خاتمے کے لیے جدوجہد جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا جائے گا۔ عالمی برادری کو سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت دینا ہوگا۔
नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार और बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा डेविड लेमी की मुलाकात दो तरफ़ा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं और ताउन को मुस्तहकम करने पर तबादला ख़याल। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और बरतानिया की शराकत दारी को नई बुलंदियों पर ले जाने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। समोआ में दौलत मुश्तरका सरबराह इजलास, दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर तबादले ख्याल। पाकिस्तान मुस्तहकम आलमी मालियाती ढांचे का ख्वाहां है। तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में मसनूई जहानत से इस्तेफादा करने की जरूरत है। आलमी मंडियों में महदूद रसाई, माहौलियाती तब्दीलियों समेत दरपेश चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए ताउन नागुज़ीर है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इजलास से खिताब। आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तान की मौसर इक़्तिसादी पॉलिसियों के मोतरफ। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में मुलाकातें। एशियाई तरक्याती बैंक के सदर का तरक्याती अमल में ताउन जारी रखने के आज़म का इजहार। वज़ीर ख़जाना और दुबई इस्लामी बैंक ग्रुप के सरबराह का मालियाती उमूर पर तबादला ख्याल। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के नुमाइंदों की वज़ीर ख़जाना से इक़्तिसादी पॉलिसियों और मालियाती नज़्म नस्क के हवाले से गुफ्तगू। ज़राई शोबे की तरक्की के लिए पंजाब हुकूमत के मुख्तलिफ इक़दामात। किसान कार्ड के लिए 11 लाख से जायद काश्तकारों की रजिस्ट्रेशन। 5 लाख से जायद किसानों को कार्ड मिल चुके। ट्रैक्टर प्रोग्राम के लिए 15 लाख दरखास्तें मौसूल। टमाटर और प्याज की पैदावार में इजाफे के लिए भी खुसूसी इक़दामात। ज़राई पैदावार में इजाफे के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अहमियत का हामिल है। ज़राअत की तरक्की के लिए जदीद साइंसी तरीकों को फ़रोग़ दिया जाए। वज़ीर आला मरियम नवाज। भारत जुल्म जबर से कश्मीरियों की आवाज दबा नहीं सकता। इंसानी हुकूक के अलंबरदारों को मकबूजा कश्मीर में खिलाफ वर्जियां नजर क्यों नहीं आती। पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी, सफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेगा। वफाकी वजीर उमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मुकाब। हुर्रियत क़यादत जिद्दोजहद आज़ादी को मंतक़ी अंजाम तक पहुँचाने के लिए पुरअज़्म। जम्मू कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जा सेकुलर होने के दावेदार भारत के माथे पर बदनुमा दाग है। भारतीय मजालिम हक़ खुदरादियत के मनसिफाना जिद्दोजहद को दबा नहीं सकते। भारत से आज़ादी का सूरज जल्द तुलू होगा। चेयरमैन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस मुसर्रत आलम भट्ट। बानी पीटीआई की हिमायत में यहूदी लॉबी की पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियां। अमरीकी सेनेटर्स के बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक खत के मंदरजात ने गठजोड़ बेनकाब कर दिया। खत लिखने वाले सेनेटर्स में 9 यहूदी नस्ल परस्त और 29 इसराइल के हिमायती निकले। 13 सेनेटर्स भारत नवाज और 21 पाकिस्तान के कट्टर मुखालिफ। पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें अपने कीमती असासे को बचाने के लिए तमाम हथकंडे इस्तेमाल करने में मसरूफ। एब्सोल्युटली नॉट के दावेदार पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में बैरूनी मुदाखलत के लिए तड़पने लगे। पिशावर के इलाके हयाताबाद में शदीद आतिशज़दगी। फैक्ट्री में लगी आग पर कई घंटे बाद भी काबू ना पाया जा सका। शिद्दत में इजाफा, तीसरे दर्जे की आग करार। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने पाक फजाइया से मदद तलब कर ली। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के एहतजाजी लश्कर में शामिल फायर ब्रिगेड की गाड़ियां कहां हैं? अवाम का सवाल। जलती फैक्ट्रियां देखकर सनतकार बेबस। खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात। अवाम ने पीटीआई को यकसर मुस्तरद कर दिया। सूबाई हुकूमत की पॉलिसियों पर अदम एतमाद का इजहार। तरक्याती मंसूबों के लिए फंड्स मुयसर नहीं। पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार भी बुरी तरह नाकाम हुए। रोजनामा जंग और दी न्यूज की रिपोर्ट। सस्ती बिजली के लिए मुतबादिल तवानाई ज़राए का फरोग। दरियाए सवात पर कसीरुल मकासिद मोहम्मद डैम की तामीर पर काम जारी। 800 मेगावाट सलाहियत के मंसूबे पर 309 अरब रुपए लागत आएगी। मंसूबा 2027 में मुकम्मल होगा। 18,000 एकड़ से जायद राजी सैराब होगी। पिशावर शहर को यौमिया 300 मिलियन गैलन पानी भी मुयसर होगा। 4 सद्दा पिशावर और नौशहरा में सैलाब की तबाहकारियों पर काबू पाने में भी मदद मिलेगी।
पाकिस्तान की रावलपिंडी टेस्ट में 9 विकेटों से कामयाबी, इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज 2-1 से जीत ली। मैच के तीसरे दिन इंग्लिश टीम 112 रन पर आउट, कौमी टीम ने 36 रन का हदफ 1 विकेट पर हासिल कर लिया। पहली इनिंग्स में सेंचुरी पर सऊद शकील मैन ऑफ द मैच। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की कौमी टीम को मुबारकबाद। That's a very, very close. Crawley. Oh, gone. Now gone. Oh, now that's bouncing. इंग्लैंड के खिलाफ 2015 के बाद टेस्ट सीरीज की कामयाबी में स्पिनर्स का अहम किरदार। साजिद खान और नुमान अली की तबाहकुन बॉलिंग। पिंडी टेस्ट में साजिद खान की 10 और नुमान अली की 9 विकेटें। 2 मैचों में नुमान अली ने 20 और साजिद खान ने 19 शिकार किए। साजिद खान सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। कौमी टीम 2021 के बाद होम टेस्ट सीरीज जीतने में कामयाब हुई। और न्यूजीलैंड ने तारीख रकम कर दी, पहली बार भारत को उसकी सरजमीन पर शिकस्त से 2-4 कर दिया। पुणे टेस्ट में भारत को 113 रन से शिकस्त, मिचेल सेंटनर की 13 विकेटें। कीवीज को 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। आप रहिए पीटीवी न्यूज के साथ। दुनिया एक दर्दनाक हकीकत का सामना कर रही है। गजा और लेबनान में इस्राएली मजालिम और हमलों ने बेशुमार जानें छीन ली। मुश्किल की इस घड़ी में वजीर आजम पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अवाम से खुसूसी अपील की है कि वो अपने फलस्तीनी बहन भाइयों की दिल खोल कर मदद करें। इस मकसद के लिए प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड फॉर गजा एंड लेबनान कायम किया गया है। गजा और लेबनान के लिए प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में अतियात किसी भी बैंक की ब्रांच में नकद, चेक या ऑनलाइन जमा करवाए जा सकते हैं। अकाउंट नंबर IBAN PK11 SBPD 00000 11111 4292 या रास्त ID 01111 4292। मजीद मालूमात के लिए विजिट करें www.pmo.gov.pk/PMRFGL। This is systematic slaughter of innocent people of Palestine. We must act now and demand an immediate end to this bloodshed. दुनिया एक दर्दनाक हकीकत का सामना कर रही है। गजा और लेबनान में इस्राएली मजालिम और हमलों ने बेशुमार जानें छीन ली। मुश्किल की इस घड़ी में वजीर आजम पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अवाम से खुसूसी अपील की है कि वो अपने फलस्तीनी बहन भाइयों की दिल खोल कर मदद करें। इस मकसद के लिए प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड फॉर गजा एंड लेबनान कायम किया गया है। गजा और लेबनान के लिए प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में अतियात किसी भी बैंक की ब्रांच में नकद, चेक या ऑनलाइन जमा करवाए जा सकते हैं। अकाउंट नंबर IBAN PK11 SBPD 00000 11111 4292 या रास्त ID 01111 4292। मजीद मालूमात के लिए विजिट करें www.pmo.gov.pk/PMRFGL। This is systematic slaughter of innocent people of Palestine. We must act now and demand an immediate end to this bloodshed.
بریک کے بعد خبرنامے میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں جسٹس یحییٰ آفریدی نے چیف جسٹس آف پاکستان کی ذمہ داریاں سنبھال لی۔ ایوان صدر اسلام آباد میں حلف برداری کی پروقار تقریب میں صدر آصف علی زرداری نے ان سے حلف لیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بھی تقریب میں شرکت کی۔ تفصیل بتا رہے ہیں شاہد خان اپنی رپورٹ میں۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی حلف برداری کی پروقار تقریب ایوان صدر اسلام آباد میں ہوئی۔ صدر آصف علی زرداری نے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی سے ان کے عہدے کا حلف لیا۔ I, Justice Yahya Afridi, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. In all circumstances, I will do right in all manner of people, according to law, without fear or favor, affection or ill will. and that in all circumstances I will do right to all manner of people according to law, without fear or favor, affection or ill will. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. حلف برداری کی تقریب میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے شرکت کی۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی، اسپیکر قومی اسمبلی سردار آیت صادق، وفاقی وزراء عطا اللہ تارڑ، جام کمال، علیم خان، اعظم نذیر تارڑ اور مصدق ملک سمیت مسلح افواج کے سربراہان نے شرکت کی۔ تقریب میں صوبوں کے گورنرز، وزرائے اعلیٰ، سپریم کورٹ و ہائی کورٹ کے ججز، سابق چیف جسٹسز، لا افسران، وکلاء تنظیموں کے عہدیداران، وکلاء اور میڈیا نمائندوں سمیت مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے بھی شرکت کی۔ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی نے اعلیٰ عدلیہ میں مختلف مقدمات کی سماعت کی اور اہم بینچز کا حصہ رہے۔ محمد شاہد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے جسٹس یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے کا حلف اٹھانے پر مبارکباد دیتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ اپنے تہنیتی پیغام میں وزیر اعظم نے کہا کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے تجربے اور دانش سے انصاف کی فراہمی اور قانون کی بالادستی کو مضبوط بنانے میں رہنمائی ملے گی۔ وزیر اعظم نے اس یقین کا اظہار کیا کہ نئے چیف جسٹس کی قیادت میں عوام کو انصاف کی فراہمی میں تیزی اور آسانی ہوگی۔ پاکستان کے 30ویں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زندگی اور پیشہ ورانہ خدمات کے حوالے سے دیکھتے ہیں اعجاز حسین کی یہ رپورٹ۔ Let me assure all, for the citizens of Pakistan, rule of law shall rule. Principles of trichotomy of power shall prevail. Dignity of a judge and majesty of the court shall be strictly ensured. Be it a civil judge sitting in Buni Chitral or my brother judge sitting next to me today. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا شمار ان ججز میں ہوتا ہے جو ہمیشہ پارلیمنٹ کی بالادستی اور آئین کی حکمرانی کے دائی رہے ہیں۔ بطور جج ان کے فیصلے اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ جسٹس یحییٰ آفریدی آئینی تشریح کے حوالے سے متعدد اہم مقدمات کی سماعت کرنے والے بینچز میں شامل رہے۔ مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ کا معاملہ ہو یا پھر پارلیمنٹیرینز کی تاحیات نااہلی کا کیس، پنجاب میں عام انتخابات کے انعقاد کا معاملہ ہو یا پھر سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستیں، یا پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف تحریک انصاف کے ریفرنس پر اپیل کا معاملہ۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نہ صرف ان تمام پیچیدہ آئینی معاملات کی سماعت کرنے والے بینچز کا حصہ رہے بلکہ انہوں نے اکثریتی فیصلوں کی حمایت اور اختلاف میں آئین کے تناظر میں اپنا نقطہ نظر واضح انداز میں بیان کیا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا تعلق ضلع کوہاٹ کے گاؤں بابری بانڈا سے ہے۔ وہ 23 جنوری 1965 کو ڈیرہ اسماعیل خان میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم HSN کالج لاہور سے حاصل کرنے کے بعد انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے پولیٹیکل سائنس اور اکنامکس میں BA کیا۔ پنجاب یونیورسٹی لاہور سے اکنامکس میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد انہوں نے کامن ویلتھ اسکالرشپ پر جیسس کالج کیمبرج یونیورسٹی سے LLM کیا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کی 1990 میں ہائی کورٹ اور 2004 میں سپریم کورٹ میں بطور وکیل انرولمنٹ ہوئی۔ 2010 میں جسٹس یحییٰ آفریدی کو پشاور ہائی کورٹ کا ایڈیشنل جج مقرر کیا گیا۔ 15 مارچ 2012 کو وہ بطور ہائی کورٹ جج مستقل ہوئے اور بعد ازاں 30 دسمبر 2016 کو انہوں نے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی 28 جون 2018 کو سپریم کورٹ کے جج مقرر ہوئے تھے۔ اعجاز حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लीमी के दरमियान सुमो में मुलाकात हुई। मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। नायब वज़ीर आज़म ने बरतानवी वज़ीर ख़ारजा को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। दोनों रहनुमाओं ने पाक बरतानिया शराकतदारी को बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान जमहूरियत, इंसानी हुकूक और कानून की हुक्मरानी पर कारबंद है। समोआ में दौलत मुश्तरका के सरबराहान हुकूमत के इजलास से खिताब में नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने आलमी बिरादरी पर जोर दिया कि कर्जों में रिलीफ, पायदार सरमायाकारी और मसावी मालियाती ढांचे की तश्कील में कसीरुल जहती ताउन यकीनी बनाया जाए। Pakistan acknowledges the Commonwealth's pivotal role in supporting free and fair elections, good governance, democratic practices and access to justice. As a developing nation with over 240 million people, Pakistan recognizes the pressing need for investment in education, health and infrastructure, yet we face significant challenges due to the limited access to international financial markets and the impacts of climate change. वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि काश्तकारों समेत आवाम को रिलीफ और सहूलियात की फराहमी सूबाई हुकूमत की तरजीहात में सरे फहरिस्त है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने खुसूसी इजलास की सदारत के दौरान किया। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया कि पंजाब में 11,42,000 काश्तकार किसान कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, जबकि 2,96,000 से जायद कार्ड फाल हो चुके हैं। वज़ीर आला को आगाह किया गया कि 5 लाख से जायद काश्तकार किसान कार्ड वसूल भी कर चुके हैं। कुछ बात करेंगे मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल की, जहां जंग के बादल मजीद गहरे हो गए हैं। इसराइल ने ईरान में फौजी तनसीबात को निशाना बनाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली तैयारों ने दारुल हुकूमत तेहरान, इलाम और खुजिस्तान में फौजी अड्डों पर हमले किए हैं। इन हमलों के बाद तेहरान में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। ईरानी फौज ने हमलों में 2 एहलकारों के जाँ बहक होने की तस्दीक करते हुए कहा है कि इसराइली जारहियत के नतीजे में फौजी अड्डों को महदूद नुकसान पहुंचा है। इसराइली फौज ने इन हमलों को 1 अक्टूबर के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों का जवाब करार दिया है। आलमी दुनिया की जानिब से ईरान पर इसराइली हमलों की मजम्मत जारी है। पाकिस्तान, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्की, कतर, ओमान, मलेशिया, शाम, इराक और उर्दन समेत दीगर ममालिक ने ईरान पर हमलों की मजम्मत करते हुए इसे तेहरान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी और बैनुल-अक़वामी कवानीन और ज़वाबित की पामाली करार दिया है। रूस ने कहा दोनों फ़रीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें। यूरोपीय यूनियन ने भी दोनों फ़रीक़ैन से मशरिक़ वस्ता में बेकाबू कशीदगी से बचने के लिए इंतहाई तहम्मुल का मुज़ाहिरा करने का कहा है। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक हमलों के बारे में इसराइल ने पेश की इतला दी थी, लेकिन हमने उनमें हिस्सा नहीं लिया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ईरान के खिलाफ इसराइली जारहियत के इक़दाम पर शदीद तशवीश का इज़हार किया है। एक्स पर जारी बयान में वज़ीर आज़म ने इसराइल के इस इक़दाम की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि इस तरह के इक़दाम से न सिर्फ इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को खतरा है, बल्कि ये कार्रवाई खुद मुख्तारी के उसूलों और बैनुल-अक़वामी कानून की भी खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान अमन के हुसूल के लिए ईरान और दीगर हमसाया ममालिक के साथ मिलकर काम करता रहेगा। पाकिस्तान तमाम फरीकों पर जोर देता है कि वो मजीद कशीदगी से बचने के लिए तहम्मुल से काम लें। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने अपने बयान में कहा है कि इस तरह के हमलों से इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचता है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से मुतालबा किया है कि वो बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती के क़याम के लिए अपना किरदार अदा करे और खित्ते में इसराइली जारहियत और इसके मुजरिमाना तर्ज अमल के खात्मे के लिए फौरी इक़दाम करे। इसराइली बर्बरियत की इंतहा। गजा और खान यूनिस में इसराइल की बमबारी में खवातीन और बच्चों समेत 126 अफराद शहीद और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। इसराइली फौज ने महसूर गजा के इलाके खान यूनिस में एक मकान को निशाना बनाया है। फ़लस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक इस बुज़दिलाना कार्रवाई में 38 अफराद शहीद हो गए। शहदा में 14 बच्चे भी शामिल हैं, जिनमें 9 बच्चों का ताल्लुक एक ही खानदान से है। शिमाली गजा में इमदाद के हुसूल के लिए इकट्ठे होने वाले मजलूम फ़लस्तीनियों पर इसराइली ड्रोन हमले में 12 अफराद शहीद हुए। सिहूनी फोर्सेस ने गजा के कमाल अदवान अस्पताल का मुसलसल मुहासरा कर रखा है। अस्पताल में 600 के करीब मरीज और हेल्थ वर्कर्स मौजूद हैं। दूसरी जानिब लेबनान पर भी इसराइली फौज हमलों में तेजी। लेबनान की वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में इसराइली हमलों में 41 अफराद जाँ बहक, 133 जख्मी हुए। इसराइली हमलों से अब तक 104 बच्चों और 194 खवातीन समेत 2634 अफराद जाँ बहक और 12,252 अफराद जख्मी हो चुके हैं। आलमी इदारा सेहत के सरबराह ने लेबनान में बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार करते हुए कहा कि इसराइली जारहियत के बायस 100 से ज़ायद मराकिज़ सेहत बंद हो चुके हैं।
کچھ قومی خبروں میں آپ کو بتائیں گے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ہدایت پر NDMA کی جانب سے غزہ اور لیبنان کے لیے امدادی سامان کی ترسیل جاری ہے۔ اسلام آباد سے امدادی سامان کی 13ویں کھیپ غزہ اور لبنان روانہ کر دی گئی ہے۔ ہوائی اڈے سے امداد کی روانگی کے موقع پر فلسطینی سفیر، مشیر قانون بیرسٹر عقیل ملک، NDMA اور وزارت خارجہ کے حکام موجود تھے۔ میڈیا سے گفتگو میں بیرسٹر عقیل ملک نے بتایا کہ فلسطین اور لبنان کے لیے 100 ٹن امدادی سامان بھیجا جا رہا ہے۔ امدادی سامان میں خیمے، کمبل اور دیگر اشیاء شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے لبنان اور فلسطین کے لیے ریلیف فنڈ بھی قائم کیا ہے۔ پاکستان فلسطینی بھائیوں کے لیے امدادی سامان کی ترسیل کا یہ سلسلہ جاری رکھے گا۔ 25 اکتوبر کو ضلع لکی مروت میں مسجد پر فتنہ الخوارج کے حملے کو جرأت اور دلیری سے ناکام بنانے والے پاک فوج کے کیڈٹ عارف اللہ شہید کو اپنے آبائی علاقے میں مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ شہید کی نماز جنازہ اور تدفین میں پاک فوج کے سینئر افسران، جوانوں، شہداء کے لواحقین اور عمائدین علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مسلح افواج مادر وطن سے دہشت گردی کی لعنت کو ہر قیمت پر ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ نائک سیف علی جنجوعہ شہید نشان حیدر کا 76واں یوم شہادت عقیدت اور احترام سے منایا گیا۔ کوٹلی میں شہید کے مزار پر خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پروقار تقریب ہوئی۔ تفصیل بتا رہی ہیں کنسا نقوی۔ پاک فوج کے بہادر سپوت نائک سیف علی جنجوعہ نے وطن کی حفاظت کرتے ہوئے 26 اکتوبر 1948 کو جام شہادت نوش کیا۔ کوٹلی میں ان کے مزار پر یوم شہادت کی مناسبت سے پروقار تقریب ہوئی۔ اس موقع پر آزاد کشمیر ریجمنٹ کے سینئر آفیسر بریگیڈیئر محمد ہارون اور بریگیڈیئر عثمان علی نے شہید کی قبر پر پھول چڑھائے اور ان کی درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ پاک فوج کے چاقو چوبند دستے نے نائک سیف علی جنجوعہ شہید کو سلامی بھی پیش کی۔ دن کا آغاز مساجد میں قرآن خوانی اور دعاؤں کے ساتھ ہوا۔ علماء اکرام نے شہید کی درجات کی سربلندی کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا۔ علماء اکرام نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ شہید ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں۔ زندہ قومیں اپنے محسنوں کے احسانات کو فراموش نہیں کرتیں۔ نائک سیف علی جنجوعہ شہید 23 اپریل 1922 کو کھنڈار آزاد جموں و کشمیر میں پیدا ہوئے۔ وہ 1947 میں پاکستان آ کر سردار فتح محمد کریلوی کی حیدری فورس میں شامل ہوئے۔ سیف علی جنجوعہ کو ان کی قابلیت کے پیش نظر نائک کا عہدہ دے کر بودھا کھنہ کے مقام پر تعینات کیا گیا۔ 26 اکتوبر 1948 کو دشمن نے بھاری توپخانے اور ٹینکوں کی مدد سے پیر کلیوا پوسٹ پر قبضے کے لیے حملہ کیا۔ اس دوران فضائی بمباری اور شیلنگ کے سبب پلاٹون کی کمان کرنے والے نائک سیف علی جنجوعہ کی دونوں ٹانگیں شدید زخمی ہو گئیں۔ حملے کے دوران دشمن کا گولہ ان کی چیک پوسٹ کے قریب آ گرا اور وہ شدید زخمی ہو گئے۔ پاک فوج کے اس بہادر سپوت نے مادر وطن کا دفاع کرتے ہوئے 26 اکتوبر 1948 کو جام شہادت نوش کیا۔ اس سرزمین کا ذرہ ذرہ گواہی دیتا ہے کہ اس کی بقا اور سلامتی کی خاطر میرے دادا جان نائک سیف علی جنجوعہ شہید نشان حیدر نے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ آپ کا لفانی عمل ان لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے جو اس سرزمین کے تقدس کو بحال رکھنے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ قوم آپ کی قربانی کو کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ شہداء کا لہو کبھی رائیگاں نہیں جائے گا۔ انشاءاللہ پاک فوج زندہ باد۔ 14 مارچ 1949 کو حکومت آزاد جموں و کشمیر کی ڈیفنس کونسل نے ان کو آزاد جموں و کشمیر کا سب سے بڑا عسکری اعزاز ہلال کشمیر دینے کا اعلان کیا۔ بعد ازاں حکومت پاکستان نے 1995 میں ہلال کشمیر کو نشان حیدر کے مساوی قرار دے دیا۔ کنزا نقوی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ بھارت ظلم و جبر سے کشمیریوں کی آواز دبا نہیں سکتا۔ اسلام آباد میں وزیر امور کشمیر انجینئر امیر مقام نے آل پارٹیز حریت کانفرنس کے رہنماؤں کے ہمراہ نیوز کانفرنس کے دوران کہا کہ پاکستان کشمیریوں کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔ تفصیل بتا رہی ہیں صدف افضل اپنی رپورٹ میں۔ کشمیری عوام ہر سال 27 اکتوبر کا دن یوم سیاح کے طور پر مناتے ہیں۔ رواں برس بھی دنیا بھر میں مقیم کشمیری یوم سیاح اس عزم کی تجدید کے ساتھ منائیں گے کہ وہ آزادی کے حصول تک اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ وفاقی دارالحکومت میں بھی احتجاجی مظاہرے، ریلیاں اور سیمینارز کا انعقاد کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر امور کشمیر و گلگت بلتستان انجینئر امیر مقام نے کشمیری حریت رہنماؤں کے ہمراہ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ 27 اکتوبر کشمیر پر بھارت کے غاصبانہ قبضے اور کشمیری عوام پر ڈھائے جانے والے مظالم کو بے نقاب کرنے کا دن ہے۔
انہوں نے کہا کہ بھارت جبر سے کشمیریوں کی آواز دبا نہیں سکتا. یہ کشمیر والا کاز اور ایشو اس طرح ہے کہ یہ سارا ہم سب کا ایشو ہے, ہم سب کو اکٹھا رکھ سکتے ہیں. ہمیں یہ اس کو اس طرح لے کے جانا ہے کہ اس کو پوری پاکستانی قوم کو اکٹھا کر سکتے ہیں, اور یہ ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے. کشمیریوں کو, وہی جو مقبوضہ جموں کشمیر میں ہمارے بہن بھائی ہیں, ان کی بہادری کو ہم سلوٹ سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح جوان مردی سے, آپ پوری ہسٹری اور تاریخ دیکھیں اور پوری دنیا کو دیکھ لینے چاہیے کہ وہی جو فگرز ہے, اپ ٹو 1 لاکھ لوگ اس میں شہید ہو گئے, اپ ٹو 1 لاکھ, اس میں کئی ہزار جیلوں کے اندر اور بقایا باہر, ان کے کئی لاکھوں کے لوگ گھر ان کے مسمار ہو گئے, کئی ہمارے بہنیں اور مائیں اس طرح بیوائے ہو گئے, کئی بچے, لاکھوں کی تعداد میں بچے یتیم ہو گئے. اس کے ساتھ کیا نہیں ہوا, مگر اس کے باوجود کسی فورس نے ان کو دبائے نہیں رکھا اور ان کا یہ آواز قائم دائم ہے. سینئر حریت رہنما فاروق رحمانی نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کسی زمین کا تنازع نہیں بلکہ انسانی حقوق کا مسئلہ ہے. ہندوستان کی یہ نیت ہے کہ وہ ڈیموکریٹک چینجز لائے کشمیر میں, اور اس کا آغاز ہو گیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ایسے اقدامات سٹیپس اٹھائے جائیں ٹورڈس ریزولوشن آف کشمیر کہ ہندوستان مجبور ہو جائے کہ وہ کشمیر کا مسئلہ ٹیبل پر حل کر لے پاکستان کے ساتھ اور کشمیریوں کے ساتھ. یہی ہمارا مقصد ہے, اور اسی لیے ہم 27 بلیک ڈے پر زیادہ سے زیادہ پاکستان کی تائید سے یہ دن منا رہے ہیں اور اس سلسلے میں عوام کی حمایت حاصل کریں. وفاقی وزیر امیر مقام کا کہنا تھا کہ بھارت کا مقبوضہ کشمیر پر غیر قانونی قبضہ مسترد کرتے ہیں اور مسئلہ کشمیر کا سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل چاہتے ہیں. صدف افضل, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اسلام آباد. خبریں اور بھی ہوں گی ایک بریک کے بعد, ساتھ رکھیے گا. دنیا ایک دردناک حقیقت کا سامنا کر رہی ہے. غزہ اور لبنان میں اسرائیلی مظالم اور حملوں نے بے شمار جانیں چھین لی. مشکل کی اس گھڑی میں وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف نے عوام سے خصوصی اپیل کی ہے کہ وہ اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کی دل کھول کر مدد کریں. اس مقصد کے لیے پرائم منسٹرز ریلیف فنڈ فار غزہ اینڈ لبنان قائم کیا گیا ہے. غزہ اور لبنان کے لیے پرائم منسٹر ریلیف فنڈ میں عطیات کسی بھی بینک کی برانچ میں نقد, چیک یا آن لائن جمع کروائے جا سکتے ہیں. اکاؤنٹ نمبر IBAN PK11 SBPD 00000 11111 4292 یا راست ID 01111 4292. مزید معلومات کے لیے وزٹ کریں www.pmo.gov.pk/PMRFGL. This is systematic slaughter of innocent people of Palestine. We must act now and demand an immediate end to this bloodshed. میلی امی, میلی اماں. بچوں سے بات کرتے ہوئے صاف اور سادہ الفاظ استعمال کریں کیونکہ اس سے وہ جلدی اور بہتر بولنا سیکھتے ہیں. چھوٹے چھوٹے کام دے کر ان میں سیکھنے کا شوق پیدا کریں کیونکہ بچوں کی زیادہ تر ذہنی نشو و نما ان کی زندگی کے پہلے 2 سالوں میں ہوتی ہے. آپ کے بچے زندگی میں کامیاب ہوں گے جب آپ بچپن سے کریں گے ان کی پرورش ہر قدم. دنیا ایک دردناک حقیقت کا سامنا کر رہی ہے. غزہ اور لبنان میں اسرائیلی مظالم اور حملوں نے بے شمار جانیں چھین لی. مشکل کی اس گھڑی میں وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف نے عوام سے خصوصی اپیل کی ہے کہ وہ اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کی دل کھول کر مدد کریں. اس مقصد کے لیے پرائم منسٹرز ریلیف فنڈ فار غزہ اینڈ لبنان قائم کیا گیا ہے. غزہ اور لبنان کے لیے پرائم منسٹر ریلیف فنڈ میں عطیات کسی بھی بینک کی برانچ میں نقد,
चेक या ऑनलाइन जमा करवाए जा सकते हैं। अकाउंट नंबर IBAN PK11 SBPT 00000 11111 4292 या रास्त ID 01111 4292। मजीद मालूमात के लिए विजिट करें www.pmo.gov.pk/PMRFGL। This is systematic slaughter of innocent people of Palestine. We must act now and demand an immediate end to this bloodshed. ब्रेक के बाद आपको बताएं, हुर्रियत रहनुमा मिशाल मलिक ने कहा है कि भारत में मोदी की मकबूलियत में कमी हो रही है। चेयरमैन कश्मीर कमेटी राना कासिम नून ने मसला कश्मीर को आलमी सतह पर उजागर करने की जरूरत पर जोर दिया। तफसील बता रहे हैं हसन रियाज। इस्लामाबाद में मकबूजा कश्मीर पर भारतीय गैर कानूनी तसल्लुत के 77 साल मुकम्मल होने से मुतल्लिक गोल मेज कॉन्फ्रेंस हुई। इस मौके पर हुर्रियत रहनुमा मिशाल मलिक ने खिताब करते हुए कहा कि भारतीय जमहूरियत धोखा है, कश्मीरियों को अपनी कौम से मोहब्बत है। ये उनकी मतलब कि मोहब्बत की जो इंतहा है, फना होना, वो कश्मीरी कौम ने वो कुर्बानियाँ जो है, जो पहले अल्फाज जब मैं मकबूजा कश्मीर भी गई या यासीन साहब से सुने या जिससे भी सुने, मैं अपनी सास से सुने, तो वो उनके अंदर सब में इतनी शिद्दत है, मोहब्बत है अपनी वतन से, अपनी कौम से। चेयरमैन कश्मीर कमेटी राना कासिम नून ने कहा कि कश्मीर इलाकाई मसला नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी मसला है जिसको हल करना जरूरी है। साउथ एशिया में उस वक्त तक अमन नहीं आ सकता जब तक कश्मीर का मसला यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशंस के मुताबिक और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो रेजोल्यूशंस हैं और वहाँ पे उनकी धज्जियां उड़ा दी गई। ये सबसे पुराना मसला है यूएन के एजेंडा पर। कश्मीरियों के हक खुद इरादियत के लिए आलमी सतह पर आवाज उठाना इंतहाई अहम है ताकि मकबूजा आबादी में मजालिम का नोटिस लिया जा सके। हसन रियाज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय अफवाज ने तक़सीम बरे सगीर के उसूलों को पसे पुश डालते हुए मकबूजा कश्मीर में अपनी फौजें उतारी और जबरी कब्जा जमा लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं अदील अहमद खान। 1947 में जब बर्रे सगीर तकसीम हो रहा था तो इस वक्त कश्मीर की 80% आबादी मुसलमान थी। रियासत का मजहबी, जोग्राफियाई, नज़रियाती और माशी एतबार से पाकिस्तान के साथ इल्हाक फितरी था। मुसलमानों की अक्सरियत बबांगे दहल पाकिस्तान के साथ इल्हाक का फैसला कर चुकी थी। खित्ते से जब बरतानवी साम्राज्य का सूरज गरूब हो रहा था तब भारत एक नए साम्राज्य का रूप धार कर सामने आया और 27 अक्टूबर 1947 में अपनी फौजें श्रीनगर में उतारी और तकसीम बरसगीर पाक हिंद के तमाम तर असूलों और ज़ाब्तों को बालाए ताक रखते हुए मकबूजा कश्मीर पर अपने तसल्लत के पंजे गाड़ लिए। कश्मीर के लोग इस कब्ज़े के ख़िलाफ़ उसी वक्त से रोज़ अव्वल से मज़ाहमत कर रहे हैं। उस वक्त भी जब भारत की फ़ौज श्रीनगर एयरपोर्ट पर उतरी तो उस वक्त भी कश्मीरियों में एक मज़ाहमत शुरू हुई। उन्होंने मुजाहरे शुरू किए। वो निहत्ते थे, उनके पास असला नहीं था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने भारत की फौज की आमद के खिलाफ अपने भरपूर रद्द अमल का मुजाहिरा किया। वाइसराय हिंद लॉर्ड माउंटबेटन ने कांग्रेस के साथ मिली भगत से बाउंड्री कमीशन अवार्ड में तब्दीली करवाकर मशरकी पंजाब के मुस्लिम अक्सरियती जिला गुरदासपुर को भारत के हवाले करके इसे कश्मीर तक जमीनी रसाई फराहम कर दी थी। 7 दहाइयां बीत चुकी हैं मगर मकबूजा कश्मीर आज भी भारतीय फौज के जुल्म इस्तबदाद के स्याह बादलों की जद में है। मकबूजा कश्मीर के अवाम आज भी अपने पैदाइशी हक के खुद इरादियत के लिए बरसरे पैकार हैं। यहाँ ताकत का हर हरबा आजमाया जा रहा है। जन्नत नजीर वादी को फौजी छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हर साल कश्मीरी अवाम 27 अक्टूबर का दिन यौम स्याह के तौर पर मनाते हैं और रियासत के दोनों अतराफ बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहिरों और जलसे जुलूसों का इनेकाद किया जाता है। हर साल 27 अक्टूबर को कश्मीरी अवाम सरापा एहतजाज होकर अक़वाम आलम, अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक के अलमबरदारों से ये सवाल पूछते हैं कि कश्मीरियों को उनका पैदाइशी और बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा हक खुद इरादियत दिलवाने के लिए भारत पर दबाव क्यों नहीं डाला जाता, बाज़पुरस क्यों नहीं की जाती। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी कल यौम स्याह मनाएंगे। तफसील बताएंगे नईमुल असद अपनी रिपोर्ट में।
कश्मीरी अवाम कल यौम इस आज़म की तजदीद अहद के साथ मनाएंगे कि वो आज़ादी के हुसूल तक अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। 27 अक्टूबर 1947 को भारत ने श्रीनगर में अपनी फौजें उतार कर गैर कानूनी तसल्लुत कायम किया था। कश्मीरी अवाम हर साल 27 अक्टूबर को यौम के तौर पर मनाते हैं, जिसका मकसद आलमी बरादरी को ये वाज़िह पैगाम देना है कि वो अपने मादरे वतन पर गैर कानूनी भारतीय कब्जे को मुस्तरद करते हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर में कल मुकम्मल हड़ताल की जाएगी, जबकि आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान और दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहरे, रैलियां और सेमिनार्स का इनकाद किया जाएगा। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक ने कहा है कि हुर्रियत क़यादत तनाज़े कश्मीर के पुरअमन हल पर यकीन रखती है और वो इस मकसद के हुसूल के लिए अपनी कोशिश जारी रखेगी। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने बरमला इस बात का इजहार किया, इस फोरम को वजूद में लाने का मकसद ये है कि हम पुरअमन तरीकों से मसले कश्मीर को हल देखना चाहते हैं। आज तकरीबन 30 साल गुजर गए, कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस बराबर इसी मौक़िफ़ और मंशूर पे खड़ा है कि जम्मू कश्मीर के मसले का सियासी हल फौजी ताकत से नहीं, बंदूक से नहीं, बल्कि बातचीत से निकलेगा। हुर्रियत रहनुमा जाहिद अशरफ ने कहा है कि भारत ने 1947 में कश्मीरियों की ख्वाहिशात पामाल करते हुए जम्मू कश्मीर पर गैर कानूनी तसल्लुत जमा लिया था। इन 77 सालों में न हिंदुस्तान ने न अक़वाम आलम ने उन अपने वादों का लिहाज रखा। कश्मीर से अपनी फ़ौजें वापस बुलाते, इसमें फ़ौजी कम करने के बजाय वहाँ इजाफा होता गया। हुर्रियत रहनुमा गुलशन अहमद का कहना है कि आलमी बरादरी को कश्मीरी अवाम से अपना किया हुआ वादा पूरा करना चाहिए। 27 अक्टूबर को साजिश के तहत रियासती जम्मू कश्मीर में भारत ने अपनी फौजें उतार कर जाबराना कब्जा किया। तब से आज तक भारतीय अफवाज के हाथों रियासती जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामालियाँ तसलसल के साथ जारी है। कश्मीरी अवाम भारतीय गुलामी हरगिज कबूल नहीं करेंगे और वह आज़ादी की सुबह तक अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। नईमुल असद, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मुसर्रत आलम भट्ट और सीनियर रहनुमा शब्बीर अहमद शाह ने नई दिल्ली की तिहाड़ जेल से अपने पैगामात में कहा है कि भारत ने 27 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर पर फौजी जलगार करके एक बड़ी जारहियत की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पर भारतीय कब्जे से न सिर्फ कश्मीरियों की शनाख्त सख्त खतरे में है, बल्कि पूरे खित्ते का अमन व इस्तेहकाम दांव पर लगा हुआ है। हुर्रियत रहनुमाओं ने कहा कि कश्मीरियों ने कभी भारतीय तसल्लुत को तस्लीम नहीं किया और वो इसके खिलाफ अपनी जद्दोजहद अज़्म हिम्मत से जारी रखे हुए हैं। मोहम्मद यूसुफ नक्काश, अब्दुल समद इनकलाबी और दीगर हुर्रियत रहनुमाओं और आज़ादी पसंद तंजीमों ने अपने बयानात में कहा कि जम्मू कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जा नाम नेहाद जमहूरी मुल्क भारत के माथे पर एक बदनुमा धब्बा है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ गुज़िश्ता 77 बरस से भरपूर मुजाहिमत कर रहे हैं। भारतीय फोर्सेज ने मकबूजा जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में महासरे और तलाशी की कार्रवाइयों का सिलसिला तेज कर दिया है। जिला बारामूला के इलाके गुलमर्ग में जुमेरात को शुरू होने वाले ऑपरेशन के दौरान फौजियों ने ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया। जिला गांदरबल के कई इलाकों में मुसलसल 7वें दिन भी तलाशी और छापामार कार्रवाइयां जारी रहीं। काबिज फोर्सेज रियासी और जिला सांबा के मुख्तलिफ इलाकों में भी इसी तरह की कार्रवाइयां कर रहे हैं। इन कार्रवाइयों के दौरान अब तक दर्जनों अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि फौजी शहरियों को हिरासा कर रहे हैं, जिससे मकबूजा इलाके में पहले से मौजूद खौफ और दहशत के माहौल में मजीद इजाफा हुआ है। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के इलाके बहराइच में मुश्तर हिंदू इंतहा पसंद हुजूम ने मुसलमानों के घरों, इबादत गाहों और दुकानों पर धावा बोल दिया। हुजूम ने मुसलमानों के घरों पर पेट्रोल बम फेंके, गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को आग लगाई और पैसे चोरी किए। बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट के मुताबिक लोगों ने खेतों में छुपकर अपनी जान बचाने की कोशिश की, मगर शिद्दत पसंदों ने खेतों में भी औरतों और बच्चों का पीछा किया। हिंदू शिद्दत पसंदों ने दर्जनों घरों को जलाकर मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर कर दिया और मुसलमान अब बेसरो सामानी के आलम में है। मुकामी लोगों का कहना है कि पुलिस ने गुंडों को खुली छूट दे रखी थी। पुलिस ने कुछ मुसलमानों को झूठे मुकाबले में भी मार दिया। कुछ कौमी खबरों में यहाँ आपको बताएं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी ने बेंचेस की तश्कील के लिए 3 रुकनी कमेटी की तश्कील न कर दी है। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर कमेटी का हिस्सा होंगे। SIFC की सहूलतकारी और हुकूमती माशी पॉलिसियों के बायस पाकिस्तानी टेक्सटाइल की बरामदात 26 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इदारे शुमारियात के मुताबिक माह अगस्त में टेक्सटाइल बरामदात 13% इजाफे के साथ $1.6 अरब रहीं।
हासिन वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने एशियाई तरक्याती बैंक के सदर मातोसु गवास्का से वाशिंगटन DC में मुलाकात की है। मुलाकात में दोनों रहनुमा ने मुल्की महसूलात में इजाफे, इलाकाई ताउन और इस्लामाबाद में ADB के दफ्तर की बरवक्त तकमील की ज़रूरत पर इत्तफाक किया। वज़ीर ख़जाना ने पाकिस्तान की तरक्याती एजेंडे की हिमायत में ADB की शराकत को सराहा। उन्होंने माहौलियाती और कुदरती आफात के तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम के लिए $50 करोड़ कर्जे की मंजूरी के लिए ADB की हिमायत पर शुक्रिया भी अदा किया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब को डिजिटल कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की सेक्रेटरी जनरल दीमा अल याहिया से वाशिंगटन DC में मुलाकात हुई। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में तरक्की के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर ने हुकूमत की जानिब से गवर्नेंस को बेहतर बनाने, शहरियों का मयार ज़िंदगी बुलंद करने और सरमायाकारी के बारे में आगाह किया। वफाकी वज़ीर ख़जाना और महसूलात मोहम्मद औरंगज़ेब ने दुबई इस्लामी बैंक के ग्रुप CEO डॉक्टर अदनान शिरवान से वाशिंगटन में मुलाकात की। मुलाकात में दुबई इस्लामी बैंक की जानिब से मुख्तलिफ कर्ज़ों की पेशकश पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़जाना ने पाकिस्तान की माली ज़रूरियात पूरी करने में बर वक्त मदद फराहम करने पर बैंक का शुक्रिया अदा किया। और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वाशिंगटन में मूडीज़ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के नुमाइंदों से मुलाकात की। मुलाकात में मालियाती पॉलिसी, ज़र मुबादला के ज़खायर, मालियाती नज़्म ज़ब्त, महसूलात की सूरत हाल और मालियाती मंडियों के इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़जाना ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड करने पर मूडीज़ का शुक्रिया अदा किया। मोहम्मद औरंगज़ेब ने अमरीकी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक की सदर रीता जॉलेविस से भी मुलाकात की और करीबी ताउन के फ़रोग़ के हवाले से तबादला ख्याल किया। वज़ीर ख़जाना ने पाकिस्तान की तवानाई, मादनियात और IT के शोबे में एग्ज़म बैंक की दिलचस्पी का खैर मकदम किया और बैंक की पाकिस्तान में मुमकिन शमूलियत के जायज़े के लिए डेटा फराहम करने की यकीन दहानी कराई। हसीन वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद अब कोई भी साजिशों और रेशा दवानियों से मुल्क की तरक्की का रास्ता नहीं रोक सकेगा। तफसील बता रहे हैं राना इफ्तिखार अहमद। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम में कोई सुकम नहीं है, सब ने मिलकर इसकी मंजूरी के लिए काम किया। मुल्क की खिदमत करती हुकूमतों को जिन चोर दरवाज़ों से डिस्टेबल किया गया, पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा किया गया और पाकिस्तान को जो है वो तरक्की से रोका गया, अब वो चोर दरवाजे भी जो है वो बंद हो गए हैं। हम उस मसवदे के ऊपर मुतफिक हुए हैं जो मसवदा मोहतरम हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब ने PTI के साथ मिल के बनाया था और बाकायदा ऑन रिकॉर्ड है। वो जो ऑडियो और वीडियोज़ हैं वो चलानी चाहिए ना, जिसमें राजा सलमान अकरम साहब और गौहर खान साहब और अली ज़फ़र साहब ये कह रहे हैं कि जी ये मसवदा जो JUI ने मौलाना फजल रहमान साहब ने बनाया है ये काफ़ी हद तक ठीक है, हम इसके साथ जो है वो मुतफिक हैं। वेदर अपडेट में खुशामदीद, मैं हूँ कासिम अली। नाज़रीन, महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा, तहम सिंध में मौसम गर्म रहने की तवक्को है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहा। नाजरीन, खेल में खुशामदीद, मैं हूं समी इकबाल। नाजरीन, रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 9 विकेटों से हराकर सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। कौमी टीम 2021 के बाद अपनी सरजमीन पर टेस्ट सीरीज जीतने में कामयाब हुई। शानदार कारकर्दगी पर सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कौमी टीम को मुबारकबाद दी। तफसील जानिए निसार मेहदी से। And the change works. 5-wicket haul for Sajid. It's no mean achievement. The guy is unstoppable. 100 number 4 for Saud Shakil. पाकिस्तानी स्पिनर्स का मंसूबा हुआ कामयाब। रावलपिंडी टेस्ट में इंग्लैंड 3 दिन में ही शिकस्त खा गया। तीसरे रोज इंग्लैंड ने दूसरी इनिंग्स 24 रन 3 खिलाड़ी आउट पर शुरू की तो उसके बैटर्स पाकिस्तानी स्पिनर्स के सामने बेबस नजर आए और पूरी टीम 112 रन बनाकर ढेर हो गई। नोमान अली ने 6 और साजिद खान ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। Lovely delivery. Got him. Bowled him. 10 wickets.
Beautifully bowled. पाकिस्तान को जीत के लिए सिर्फ 36 रन का दस्त मिला, जो उसने 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। कप्तान शान मसूद 23 और अब्दुल्ला शफीक 5 रन बनाकर नॉट आउट रहे। Down the track. And he goes big. Very big. Ah, beauty. That's gone. Probably all the way. Is it? 6, Shan Masood. Pakistan win the series 2-1. What a remarkable comeback. सेंचुरी बनाने वाले सऊद शकील मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए, जबकि सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड साजिद खान को मिला। सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी, वज़राए आला, वफाकी व सूबाई वज़रा, गवर्नर्स और सियासी रहनुमाओं ने पाकिस्तान टीम को शानदार कारकर्दगी पर मुबारकबाद दी। कौमी टीम 2021 के बाद अपनी सरजमीन पर टेस्ट सीरीज जीतने में कामयाब हुई, जबकि 2015 के बाद पहली मर्तबा पाकिस्तान ने इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज में शिकस्त से दो-चार किया। निसार मेहदी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। और कौमी टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद ने कहा है कि तवील अरसे बाद कामयाबी पर बहुत खुशी है। पूरी टीम ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। रावलपिंडी टेस्ट जीतने के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए शान मसूद ने कहा कि सीरीज में तमाम खिलाड़ियों की कारकर्दगी काबिल कदर है। साजिद खान और नोमान अली ने शानदार बॉलिंग की। सऊद शकील ने भी बेहतरीन खेल पेश किया। इंग्लिश टीम के कप्तान बेन स्टोक्स ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तारीफ करते हुए कहा कि पाकिस्तानी टीम ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। उन्होंने कहा कि टीम की कारकर्दगी पर भरपूर तवज्जो दी जाएगी। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में खिलाड़ियों से मुलाकात की और सीरीज जीतने पर खिलाड़ियों और मैनेजमेंट को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि शुरू दिन से ही टीम वर्क की ज़रूरत पर जोर दिया और आज रिजल्ट सबके सामने है। इस जीत की टीम और कौम को बहुत ज़रूरत थी। मोहसिन नकवी ने कहा कि सब ने देखा है कि नए खिलाड़ियों को मौका देने से नतीजा जीत की सूरत में आया। अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की जाएगी। नाज़रीन, न्यूजीलैंड ने पहली मर्तबा भारत को उसकी सरजमीन पर टेस्ट सीरीज में शिकस्त दे दी। पुणे में खेले गए दूसरे टेस्ट न्यूजीलैंड ने भारत को 113 रन से हराकर 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बरतरी हासिल कर ली। तीसरे दिन भारतीय टीम 359 रन के हदफ के ताक़ब में 245 रन पर ही हिम्मत हार गई। पहली इनिंग्स में 7 विकेटें हासिल करने वाले मिचेल सेंटनर ने दूसरी इनिंग्स में भी तबाहकुन बॉलिंग करते हुए 6 भारतीय बल्लेबाजों को पेविलियन वापस भेजा। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज।